کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ٹیلی ویژن کی معروف شخصیت اور مصنف ذیشان فاضل کا جمعے کی شام سری نگر میں انتقال ہو گیا۔ بیتی شب ہی ذیشان فاضل کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحوم کے لیے دعا مغفرت کی گئی۔ ذیشان فاضل نے نمایاں ادبی خدمات انجام دی۔ مختلف گوشوں سے ذیشان فاضل کی موت پر دکھ کا اظہار کیا گیا۔ ربائی ایک نظر ڈالتے ہیں ذیشان فاضل کی زندگی پر۔ ٹیلی ویژن کی معروف شخصیت اور قلمکار ذیشان فاضل 1952 میں سری نگر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم وادی میں حاصل کی اور کشمیر یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا۔ ان کے والد فاضل کشمیری ایک معروف شاعر تھے۔ ذیشان فاضل طالب علمی کے زمانے سے ہی ریڈیو سے منسلک ہو گئے اور بعد میں وہ دوردرشن سری نگر سے وابستہ ہوئے۔ انہوں نے دوردرشن کے مختلف کیندروں میں اپنی خدمات انجام دیں۔ اپنے کریئر کے ابتدائی دور میں انہوں نے کشمیری اور ہندوستانی زبانوں میں کچھ اختراعی اور دلچسپ پروگرام پیش کیے جنہیں خوب مقبولیت حاصل ہوئی۔ ذیشان فاضل نے کئی مشہور دستاویزی فلمیں بھی بنائیں۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد ذیشان فاضل ادبی کاموں میں سرگرم رہے۔ انہوں نے 1 درجن سے زیادہ کتابیں تحریر کی۔ ذیشان فاضل کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی باوقار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ذیشان فاضل کی موت پر مختلف تنظیموں، اداروں اور شخصیات کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ ذیشان فاضل کی علمی اور ادبی کاوشوں کو یاد کیا گیا۔ شعبہ نشریات کے سلسلے میں ایک نئی اونچائی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ذیشان صاحب جہاں بھی گئے، کشمیر سے باہر، خواہ کرناٹک میں چلے گئے، خواہ ممبئی میں یا کسی اور اسٹیشن پر، انہیں آج بھی وہاں یاد کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو آج کل کے دور میں ادب و ثقافت کے حوالے سے ذیشان صاحب کی بہت ضرورت ہے۔ افسوس اللہ کو یہ منظور نہ تھا۔ اب ہم اللہ سے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ براڈ کاسٹنگ میں، ٹیلی ویژن میں، رائٹنگ میں، اور اس کے بغیر بہت ہی اچھے ملنسار تھے، دوست بہت اچھے تھے، ہیلپ فل تھے، بہت ہیلپ کرتے تھے ہر ایک کی۔ لیکن موت اٹل ہے، جانا سب کو ہے۔ میں اس وقت صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ فاضل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، اور آپ کے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیٹی ہے، ان سب کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ کام اس طریقے سے کرتے تھے، آرگنائز انداز میں کرتے تھے، جو کچھ کرنا ہوتا تھا اس میں سلیقہ لگتا تھا کہ یہ ذیشان کا پروڈکشن ہے۔ ایک چھاپ جو انہوں نے ڈالی ہے اپنے پروڈکشن کے ذریعے اپنے ویورز کے ذہنوں پر، وہ چھاپ ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور ذیشان ہماری آنکھوں سے دور ہو سکتا ہے، دلوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہم جیسے بوڑھے لوگ جنہوں نے اس کو بچپن سے دیکھا تھا، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ہم تو اللہ سے کوئی شکایت تو خدا سے ہو نہیں سکتی، مگر یہ گلہ ضرور ہے کہ صاحب ہم بوڑھوں کو طویل عمری کی ہدایت تو آپ کرتے ہیں، لیکن یہ سزا بن جاتی ہے جب اپنے سے کوئی چھوٹا ہم سے جدا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ماتم کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ذیشان کو جوار رحمت میں پناہ دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک ایس براڈ کاسٹر تھے اور ان کے پروگرام آج بھی دوردرشن کے صفحے اولین پروگراموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین ادیب بھی تھے، قلمکار تھے اور رائٹر تھے، اور کبھی بھی انہوں نے
अपने कलम पर जमूद आने नहीं दिया। हमारी बदकिस्मती है कि वो इतनी जल्दी हमसे दूर चले गए और उनके जाने से हमारे अदबी और सकाफती फील्ड में जो खुला पैदा हुआ वो पुर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। मौत ने किसी को बख्शा नहीं है, दुनिया ऐसी ही चलती है, लेकिन एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, खला पैदा हो जाता है जो भरा नहीं जाता। और फाजिल साहब का जाना एक ऐसा वैक्यूम है जो सदा रहेगा, हमेशा रहेगा। फाजिल साहब अब हमारे दिल के करीब हो, हमेशा दिल के करीब ही रहोगे। मेरी तो महाप्रभु से यही दुआ है कि आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से और इंजीनियर्स की वसातत से ऐसे ऐसे इफेक्ट्स पैदा किए जो उस वक्त मुमकिन नहीं था। मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और जहाँ जहाँ भी उन्होंने सर्विस की, खासकर त्रिवेंद्रम, जालंधर, दिल्ली और रांची, और अपना लोहा मनवाया और नाम कमाया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर ने शराब की दुकानों को खोलने के फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। श्रीनगर में आज मजलिस के खुसूसी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उलमा ने नशाखोरी, खवातीन पर तशद्दुद जैसे मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने जामा मस्जिद को मुसलसल बंद रखने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। दारुल उलूम रहीमिया के मौलाना रहमतुल्लाह ने सवाल किया कि अगर एक तरफ सरकार नशाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ शराब के लाइसेंस क्यों जारी किए जा रहे हैं। वो नशा नहीं मानते, हमारे यहाँ तो वो सबसे बड़ी लानत मानी जाती है। इस्लाम में उसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, तमाम बुराइयों की जड़। शराब पीता है शौहर तो बीवी की मारपीट भी करेगा, शराब पिएगा तो वो रास्ते में किसी को छुरा भी मार देगा, किसी की जेब भी काट लेगा। तो उन सब मर्जों का तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी बुनियाद है उसको यहाँ ला रहे हैं। इस पर पूरी जमात ने तशवीश का इजहार। हमारी नज़रों में जब हजरत बल जैसी मुक़द्दस जगह जहाँ जामा मस्जिद से ज़्यादा बड़ा मजमा होता है, जब उसको खोलने में कोई रुकावट नहीं, खानकाए मोहल्ला हमारी सबसे मरकजी है, जब वहाँ कोई परेशानी नहीं, दायरे शरीफ में जब कोई रुकावट नहीं, तो क्या वजह है? ये तो कल्ब है हमारी मस्जिदों का। जामा मस्जिद श्रीनगर बहुत अहम हैसियत रखती है। मिराजुन नबी की तक़रीबात में उनके मानने वालों को उनको दीन की बात बताने में क्या शिकायत है, नमाज की इमामत में उनसे क्या शिकायत है, ये हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए बहुत पुरजोर हम ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम जामा मस्जिद को फ़ौरन खोल देना चाहिए और उसके बाद मीर वाइस साहब को वहाँ अपना फ़र्ज़ मनसबी जो उनका कई नस्लों से, ख़ानदानी पुश्तों से ख़ानदानी फरीज़ा है, उसको अदा करने की इजाज़त देनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में बहुत से हिंदुस्तानी तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कठुआ के वार्ड नंबर 17 के रहने वाले अनिरुद्ध चौहान भी इनमें से एक हैं। अनिरुद्ध के वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि जल्द से जल्द सभी हिंदुस्तानियों को बहिफाजत मुल्क वापस लाया जाए। ज़्यादा वहाँ फायरिंग हो रही है, बम्बार्डमेंट हो रही है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। सारे ग्रोसरी शॉप्स वगैरह उन्होंने उड़ा दिए हैं, वो सारे उन्होंने डैमेज कर दिए हैं। एयरपोर्ट वगैरह तो खैर पहले ही उन्होंने वो सब ख़त्म कर दिया था। हम तो अपनी गवर्नमेंट और अपने प्राइम मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे सभी वहाँ फंसे हुए भारतीय कैंडिडेट्स, बच्चे जो भी हैं वहाँ पे, खासकर स्टूडेंट्स जिनके पास तो कोई ऐसा इंतज़ाम भी नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। इसको देखते हुए हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं वो जल्दी से जल्दी बच्चों की इवैक्यूएशन के लिए कोई पॉजिटिव स्टेप्स लें। बच्चों को वहाँ से लाने के लिए तो मैं अपनी स्टेट जो JNK की स्टेट के हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ LG हैं, उनसे और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो खुद सेंटर में बैठे हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे JNK के जितने बच्चे हैं उनको वापस ले जाए।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम लगाया कि सरकार हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। जम्मू में पार्टी कन्वेंशन के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए रमन भल्ला ने कहा कि 370 की मनसूखी करते वक्त बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के जो बुलंद बांग दावे किए थे वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार कश्मीरी माइग्रेंटों, पाक रिफ्यूजियों और आम लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही। इससे पहले रमन भल्ला ने एक रोजा पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो बुनियादी सतह पर पार्टी को मजबूत करने और लोगों के मसाइल को हल करने में जुट जाए। आप हर एक चीज को देखिए, देखो रिफ्यूजी का बहुत बड़ा इशू है, उनको एक्सप्लॉइट करके इन्होंने सीटें बढ़ाई, आज वो कहाँ पे है? हर एक जगह पे कश्मीरी माइग्रेंट की पैकेज में भी ज़्यादा नौकरियों का इजाफा ये लोग नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में जम्मू टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये लोग नहीं बना पाए। नौजवानों का रोजगार ये छीन गए और 2000 अभी स्कूल बंद किए, उससे पहले 1300 स्कूल बंद। जब बच्चे जो कौम का सरमाया है, जब उनका भविष्य ये बंद अंधकार में डाल सकते हैं, तो हम लोगों ने तो 2 स्टेप में मदद की थी, स्कूल खोले थे हर जगह पे 1 किलोमीटर के अंदर। आज वो कई चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ये टीवी में हीरो दिखाई देते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब राशन डिपो में राशन लेने के लिए जाओ, ये तो माइनस हीरो दिखाई देते हैं, क्योंकि गरीब आवाम को तो राशन डिपो से ही राशन लेना है। जब उन लोगों को आप राशन नहीं दे सकते, स्कीमें बड़ी बड़ी बनाते हो, तो सरकार ज़मीन पे है कहाँ पे, प्रशासन कहाँ पे? एक्सेसिबिलिटी लोगों की नहीं रही। आप बताओ, ये अगर सांसद झूठ बोलता है पार्लियामेंट में पे हमने मेट्रो चला दी, तो उससे अंदाजा लगा सकते हो ये झूठ का पलंदा यहाँ पे कटा। ये मैं नहीं कहता, जितेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि हमारे भाजपा के लोग झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।